Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer and KPIs in performance management system coach, and I have coached a lot of organization on the performance management system. लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कहा परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम थोड़े पीछे रहेंगे। हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि अपने हाथों से मैनुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, केपीआईज को कैसे मैप किया, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल की मैपिंग, कॉम्पिटेंसी की मैपिंग कैसे की, ये वाली बातें करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एचआर और बिजनेस की आपस में क्या अलाइनमेंट है, क्या दोनों के बीच में आज तक का गैप है जो ब्रिज नहीं हो पाया, ये कसूर किसका है, उस सेठ का है जो एचआर को पर्सनल मैनेजमेंट की तरह चलाना चाहता है, या सेठ या ऑर्गेनाइजेशन का लीड एचआर को एम्पावर करेगा कि जो एचआर मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम करेगा। आज हमारी बात हो रही है सैयद अकलीम अख्तर साहब के साथ, जो डीजीएम है टेक्नो ऑटो ग्लास लिमिटेड एंड टेक्नो एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। 18 साल की जर्नी है इनकी। 18 साल में क्या वैल्यू एडिशन की है एचआर कम्युनिटी के अंदर और खुद की लाइफ को कैसे बेहतर किया है, आज हम आपके लिए अकलीम साहब से बात करेंगे। कि अकलीम साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू वेरी मच। और आपकी आवाज का मैं पहले ही झटके में फैन हो गया सर। मुझे पता चला कि नाउ दिस इज द हाई एनर्जी वॉइस। तो मैं चाहूंगा थोड़ा आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, लोगों को बताएं कि ये 18 साल आपने कहां कहां कैसे कैसे काम किया। ब्रीफ जर्नी हो जाएगी तो उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। Okay, all right. So I did my master's from University of Karachi way back in 2004, and I started my journey from a small company like System Dyes and Moors. Yeah. Then I went abroad and I joined National Contracting Company. It was in Kuwait actually. Right. So spent 2 years with my contract, and my love to my country has brought me back. And then landed here, started my career again in Pakistan, served multiple organizations like Carrefour, and last assignment was with Hayat Kimia Pakistan. हयात कीमिया पाकिस्तान। Hayat Kimia Pakistan. जी। I was there as a country HR manager, and I was looking after administration as well. So it was a wonderful journey from the scratch. Right. We started from the first break over there. Right. And alhamdulillah, you must be aware of Hayat Kimia Pakistan. Yes, absolutely. So it's like with the brand name Molfix, we are into the market. So moms knows us very well, and then even father as well. To be very honest, When the mothers become dominant, means no mothers, wives become dominant, then the fathers start knowing about. exactly. और अब ब्रांड बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात थी कि क्वांटिटी भी थी और रेंजेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस। I haven't used it, but I bought it. Oh, that's great. So it took us around 6.5 years. I worked there, and it was wonderful journey to work with Turkish multinational, because we are actually at that time if I'm talking about still, see, I'm saying it, we are, because it was really amazing experience working with Hayat and working with the drugs especially over there. So I must say the general manager Fatih Ustanala, he was a great man. Absolutely. I worked with him and enjoyed learning. Albert Soklat, these are the people actually. Right. They know what business is. Yes. And if I'm talking about the Alper Bey, he knows what HR is actually. So took my journey almost 6.5 years over there. Then finally people were telling me कि आप मैं suicide कर रहा हूँ when I was joining a local group, surprisingly. And that normally people लोग करते क्या है वो they enjoy. No. So because we have done the part, the hardworking part was done actually. So it was really time to enjoy the fruit. But at that time, my motivation was to work for another organization, right, and to bring in the changes that I wanted for the people. So started my journey with the Techno as DGM HR and administration. So currently I'm looking after two of the companies. One is Techno Auto Glass Limited, as you briefed in your intro as well, and Techno Agri and Food. Yeah. But apart from that, Techno Group is
within the group companies, if I tell you the names of the group companies, is Techno Tangent Motors. We have with the brand name Revo. Revo. We have Techno Solar Industries. Yes. We are into solar as well. So we are into auto sector. We are into food. We are into the renewables as well. So we are enjoying this. And it's like the one thing good about the organization is we love growth. Yes, absolutely yes. And this is something amazing, honestly. एक्सलेंट, ज़बरदस्त. तो अकलीम साहब, मैं थोड़ा सा मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक आपसे और मज़ीद सवाल किया जाए. जो ओवरऑल आप HR जर्नी आपने परफॉर्म की है, एक ट्रेडिशनल HR है और एक आज का जो HR है जो मैं समझता थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक HR जो है वो बिजनेस माइंडसेट है. इन तीनों HR के अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें कि लोग टैलेंट एक्विजिशन फ्रॉम IR ER से निकल नहीं रहे, वो वाला ट्रेडिशनल HR. एक HR है कह रहा है कि जो चल रहा है वैसे चलने दो, एक आधी इंगेजमेंट करा दो, एक आधी ट्रेनिंग करा दो. लेकिन असल में जो HR का जो रोल है, क्या वो बिजनेस पार्टनर बन चुका है या आज भी बिजनेस पार्टनर के नाम पे वही पुराने गीत गा रहा है? Oh, actually, again, there was an answer. हाँ, And you have already spoken about it. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, आप किस तरह की HR है और आप किस तरह को ज्यादा फेवर करते हैं? Actually, देखिए, Didi, the major challenge that we have, the HR has, I must not say failed, Okay. is not connected to the business. Right. And that's something we need to do. Yes, absolutely. And until unless the HR will not take the ownership of the business, Right. will not evolve. Yes. So we are blaming states. हाँ. Okay, states are not giving benefits or this and that. इसे सेट नेट गिवन की बात करूं, जिस बच्चे ने मतलब यानी कि क्या, एक एग्जांपल में 2 बच्चे हैं और जो मेरी बेटी है, वो बेटियां तो होती भी ऐसी है ना. मेरी बेटी एक मरतबा के पापा चॉकलेट चाहिए, मैंने कहा रुको ला के देता हूँ, वो 3-4 रोज के बाद चुप हो जाती. सर मेरा बेटा जब तक मैं उसको चॉकलेट खरीद के नहीं देता ना, वो मेरा बुखार नहीं सर, वो चिकनगुनिया का बुखार बन जाता. जब तक उसके हाथ में चॉकलेट नहीं तब तक नहीं छोड़ता. मैं समझता हूँ HR वो मेरा बेटा है और जो सेठ है वो उसका बाप है. ऐसे ही. अगर HR को मांगना नहीं आता ना और उसको समझ नहीं आता ना मैं क्या मांग रहा हूँ और मुझे चीज क्यों चाहिए, और मैं अड़ गया हूँ, और अड़ लॉजिकल बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ यूनिट्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेवेन्यू, ऑन द ग्राउंड ऑफ बिजनेस पे, सेठ कभी मना नहीं. देखिए, फिर आप मांग नहीं रहे. You are earning it actually. Yes. Because being business partner, you're playing your role. Yes. Actually, HR is the department that is responsible for bridging Absolutely. all the subunits that we have, Absolutely yes. all the departments that we have, from supply chain to the sales to the marketing, and there is no department कि बहुत टेका है, इसका टेका नहीं है. This is something that weak your team actually. Yes. That make your team weak actually. So we need to provide strength, and that strength is to bring the unity. One team, one goal. One team. And we say, but in practice, because देखें हम emotionally भी चीज़ों को ले लेते हैं. That is a challenge as well. Yes, I understand. Being professionals, we need to take it on a positive side. Yes. अगर मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ तो क्या मैं उस दिन की तनख्वाह नहीं ले रहा? ले रहा हूँ. ले रहा हूँ. हाँ. फिर मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा. Yes. अगर मेरी वर्कफोर्स है हाँ. तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? क्या कर? मैंने उनकी करियर प्रोग्रेशन के लिए कुछ किया. या ठीक है. तो देखें, वन पार्ट इज द बिजनेस. मैंने बिजनेस को कैसे सपोर्ट किया. सेकंड पार्ट इज कि मैंने अपनी जो टैलेंट है उस टैलेंट के लिए मैंने क्या किया. ठीक है. नाउ द रियल टाइम जो रोल है वो आ जाता है. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज लाइक आप उनके करियर प्रोग्रेशन पे काम करें, उसके लिए आपको उनकी टैलेंट मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा. हाँ. उसके लिए आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा. आई एम कमिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगले शो में बात, अगले शो का मतलब अगली क्लिप पे, अगले शो नहीं अगले शो अगली क्लिप पे बात करेंगे ज्यादा. और अकलीम साहब का कहना ये है कि बीइंग अ HR इज नॉट एन इजी रोल. HR प्लेज एन रोल ऑफ एडवोकेट. अगर वो सेठ का एडवोकेट है तो एट द सेम टाइम एम्प्लॉय का भी एडवोकेट है. अगर वो सही किस्म का एडवोकेट है तो वो एम्प्लॉय के राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करेगा. एग्जैक्टली द सेम टाइम सेठ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके राइट्स को भी सही से इनकॉर्पोरेट करेगा. True. एंड मैं समझता हूँ अकलीम साहब, you have to be, अगर नहीं है, you have to be a great advocate between the employee and employer, and this is a true role of the HR. ऐसे ही एक्चुअली. देखें, एक और चीज़ है ना,
we don't need to go and advocate actually. Yes. Either side. If we are creating a balance, if we are owning the business, if we are owning the workforce, means there is no need. Yeah. There is no need. Absolutely. Because we are earning it. Earning it. Yes. Yes. Getting my point? Yes. Yes. But like once if we are on one side, the real time failure that we have in this modern world is like या तो मैं सेट का होकर रह गया हूँ या मैं एम्प्लॉय का होकर रह गया हूँ. Where is the balance? Where's जब बैलेंस मिसिंग है, HR का रोल वीक हो जाता है. Yes. Absolutely. फिर बात करते हैं आपसे कि एम्प्लॉय के लिए एक HR क्या करता है. Thank you very much. वेलकम टू ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं अकलीम साहब. अकलीम साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. अकलीम साहब, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेरा बड़ा कोर है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ उसको. और मैं समझता हूँ कि अगर जहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, HR अब तक क्या कर रहा है, और HR है क्यों वहाँ पर जहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. True. तो सबसे पहले बात करते हैं, एक साहब थे बड़े सीनियर प्रोफेशनल, अभी भी मार्केट में काम कर रहे हैं. तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं, कि दुनिया का सबसे बड़ा बायस निज़ाम है जहां पर चंद लोग सेलिब्रेट करते हैं और 90% लोग दुख मनाते हैं कि क्या इसने काम किया पूरे साल, मैंने कुछ नहीं किया. अफसरदगी है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है. इतना नेगेटिव समझते हैं कि ये निज़ाम होना ही नहीं चाहिए. पहले आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं और ऐसे इदारों के बारे में क्या राय रखते हैं? Actually, see, एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए एंड मेरिट होना चाहिए. अच्छा, आप मुझे पहले इस सवाल का जवाब दें कि अगर कहीं पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है ही नहीं, तो हाउ विल यू गेज द परफॉर्मेंस? वो कहते हैं कि यार साल खत्म होगा, सेठ के अकाउंट में पहले 4 करोड़ पे थे, अब 12 करोड़ हो रहे हैं, तो 8 का मुनाफा आ गया, बांटो सब में. सो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक्चुअली जो आप बात कह रहे थे वो इस तरफ इम्प्लीमेंट होती. Yes. Once you have performance management system truly in place, I must say, and you have done your homework in the best possible way to eradicate the biasness as well, because this is something that is failing this project actually. So performance management पे काम हो रहा है, but जब आप उसको just for the sake of एक job लेंगे, तो फिर it won't get that effective actually. तो मैंने साहब से बड़ी बहस नहीं की, वो बहुत बड़ा नाम है, मतलब बड़ी बैंकों में काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त सेशन चल रहा था, PSTD में उस वक्त मौजूद थे. अच्छा जी. तो मैंने उनसे कहा कि सर देखें, अगर ऐसा है तो नुकसान किसका हो रहा है. तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने सबको इक्वल बांटना है, इक्वल बांट दिया, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड बिगेस्ट इन इक्वालिटी फॉर द टॉप परफॉर्मर्स. 200%. और अगर टॉप परफॉर्मर ने ये रियलाइज कर दिया कि वो जो कुछ नहीं कर रहा, जो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, और जो मैं इतनी मेहनत से भाग रहा हूं, हम सबको एक जैसा मिलना है, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा, मैं लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी जैसा बन जाऊंगा, बिकॉज इन द एंड वी आर बीइंग पेड इक्वली. ऐसे ही. सो अगर हमें कंपैटिटिव सिस्टम बनाना है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज जस्ट वन टूल टू अंडरस्टैंड किसको रहना है और किसको यहां से जाना है. देखिए, first we need to understand हाँ. what objectives are. Objectives are, yes. Okay. And what key results we require to achieve an objective. Okay. Right. So this needs to be done carefully. And there should be, department leaders should be a part, or I must say, must be a part, including HR, kept on the last always. ठीक है. अब सेल्स सबसे पहले, सप्लाई चेन एंड ऑल दैट, एंड HR is sitting at the corner because of that linkage नहीं है. लिंकेज नहीं. जब वो लिंकेज नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? ठीक है. So once you are making your organization as performance driven, ठीक है, so you need to set goals accordingly. Obviously it will be linked with the organizational goals. आपने सुना होगा फिर डिपार्टमेंटल एंड देन इंडिविजुअल, सब कुछ हो रहा है. हाँ. फिर भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो नहीं पा रही. एंड फिर भी एम्प्लॉइज आर डिमोटिवेटेड एट सम प्लेसेस, और कुछ लोग मोटिवेटेड है बिकॉज हम वो जो बायसनेस है ना, वो उसमें से रेडिकेट नहीं कर पा रहे. बिकॉज हम जब टारगेट सेटिंग करते
उस वक्त हमारी वीकनेसेस वहां पर होती। बिल्कुल सही। और मैं कहता हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए होना बहुत जरूरी है। अगर क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर टीम जीत रही है, तो अकलीम साहब क्या हम 11 के 11 प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच देते हैं क्या? नेवर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मैन ऑफ द मैच की एसेंस को खो देंगे। बिल्कुल ऐसी। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा और जिसने वाकई परफॉर्म किया है, दो उसको बोनस, दो उसके इंक्रीमेंट, दो आप वो जो लड़का मांग रहा है, जो डिजर्व कर रहा है पॉलिसी के हिसाब से, Yes. एंड ट्रस्ट मी, ही विल क्रिएट अ कंपैटिटिव कल्चर एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं एक असाइनमेंट की बात कर रहा था, उन्होंने कहा रंजीत साहब अगर आपने ऐसा कर दिया ना, आप तो 2 को इनामात दे के चले जाएंगे, आपको 2 को तो PFP देकर चले जाएंगे। PFP मीन्स पे फॉर परफॉर्मेंस, आपने उनको दे दिया। बाकी जो 720 बच्चे बैठे हुए हैं उनको तो आप मुसीबत में डाल देंगे, उनको अफसरदगी के अंदर डाल देंगे। वो तो सोचेंगे क्या हम बेकार लोग हैं? बेकार नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। सो दिस इज वन साइड ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम मजीद बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपके हिसाब से क्या है, कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस स्कोर कार्ड को भी हम टच करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हमारे साथ मौजूद है अकलीम साहब। अकलीम साहब से बात हो रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से। अकलीम साहब, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो चलो ठीक है, जिनको मानना है वो अडॉप्ट करेगा, जिनको नहीं मानना एक वक्त आएगा वो परफॉर्मेंस अडॉप्ट करेगी। There is no way out. कोई और तरीका नहीं। और मैं एग्जाम्पल ये पूछता हूँ कि भाई आपके घर में बच्चे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपके कितने बच्चे हैं? 2। और दोनों स्कूल जाते हैं? बिल्कुल ऐसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से अच्छा पढ़ने वाला कौन है, तो व्हाट आर द मेजर्स टू मेजर समवन्स परफॉर्मेंस? Obviously, द रिपोर्ट कार्ड, report cards. मंथली स्कोर्स। ठीक है, सिस्टम है तो है भाई, करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। एथिक्स और बाकी सब चीजें आती हैं, दे शुड बी द पार्ट। लेकिन पहले कैसे मेजर करेंगे किसने कितना स्कोर लिया है? बिल्कुल। So exactly the same we have कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक्चुअल गोल जो हमें अचीव करना है। सर, KPIs क्या है, क्यों बनाना जरूरी है? अगर आप बनाते हैं तो आपका क्या मैथडोलॉजी है, क्या मॉडल है जब आप KPIs को ड्राइव करते हैं फॉर डिफरेंट पीपल? देखिए, पहले तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डजंट एंड एट, या वो रुक नहीं जाती जब आप वो किसी को रिवॉर्ड कर लेते हैं या किसी को आप कोई पे इंक्रीजेस दे देते हैं। इट्स एक्चुअली इट इज लिंकेज बिटवीन performance management to now talent management. Yes. And talent management to means career progression, and you're talking about. So it shouldn't get end. Yeah. हमारे यहाँ क्या होता है, वो अख्ताम हो जाता है उसका वहाँ पर, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टारगेट। नो, इट शुड बी लिंक्ड टू द टैलेंट मैनेजमेंट। हाँ। ओके, नंबर 1। नंबर 2, और इसको मैं सक्सेशन से भी जोड़ दूं। ये फॉर श्योर। मैं टैलेंट मैनेजमेंट से ऑल्सो मैं सक्सेशन वर्ड इसलिए डालना चाहता हूं ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कि PMS का बहुत बड़ा रोल है सक्सेशन प्लानिंग के अंदर। इफ यू कंसिस्टेंट परफॉर्मर, द चांसेस becomes more to be the part of talent pool who is ready for new success. Definitely. और मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि परफॉर्मेंस और KPIs को दोनों को साथ लेकर चलते हैं। चलें जी, हमने बात कर ली कि जो नंबर्स की बात है, आजकल मैंने देखा है 60-40 तोड़ देते हैं, 70-30 तोड़ देते हैं। 70% आपका KPIs होता है, 30% आपका बिहेवियर होता है, जो कॉम्पिटेंसीज मेजर होती हैं। आप किसके सबसे ज्यादा फैन है? 100% KPIs होनी चाहिए या KPIs और बिहेवियर्स का मैपिंग होनी चाहिए? आप किसको ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं? आई थिंक 80-20 होना चाहिए। 80-20 होना चाहिए, बिकॉज 80 किसको वेटेज देंगे आप? बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को। 20 किसको देंगे सर आप? 20 you can count ethics, बिहेवियर्स या कंपनी वैल्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उसकी जो कॉम्पिटेंसीज है कैसे मेजर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे आते हैं, जब यानी कि आउटकम आता है परफॉर्मेंस का, आपने कहा इट्स नॉट एंड प्रोसेस, इट्स प्योरली कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, श्योर। काइजन सर, इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने रिवॉर्ड दे दिया, आपने प्रमोट भी कर दिया, गाड़ी भी दे दी, परफॉर्मेंस एंड नहीं होती। लेकिन एक इवेंट आता है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर और दोनों में से कौन सी चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? अप्रेजल इज वन डे एक्टिविटी, यस, दिस इज 365 डेज एक्टिविटी। किस पे ज्यादा तवज्जो लगानी चाहिए? मैनेजमेंट। लोग अप्रेजल पे मर जाते हैं।
ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि अप्रेजल बस ठीक होना चाहिए, बाकी मेरा ख्याल है कि आप अगर वो 365 डेज ठीक कर लें तो ये भी ठीक। ये 365 या 364 डेज ठीक करें जैसे आउटकम, यस, लेकिन लोग कहते हैं नो, दिस वन डे इज पावरफुल एंड बिगर देन 365 डेज। और अभी आपको that's why the performance management system is not fully functioning. फंक्शनिंग ये, That's the reason. और आपको ये भी कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई We are using time tracks. टाइम ट्रैक्स देखें, अकीम साहब भी कह रहे हैं मैं आपका सिस्टम यूज करता हूँ। Oh yes. Honestly speaking, with this money Right. and the services that they're giving is outstanding. Previously in Hayat as well, we have adopted. We have used time tracks, and with Techno as well, we are using it, and we are quite happy. यस, और टाइम ट्रैक से अच्छी बात यह है कि जब आप अपना टाइम पीएमएस सही से ऑब्जेक्टिव डल जाते हैं और आखिरी बटन क्लिक करेंगे, यू गेट अ 9 बॉक्स ग्रिड। Yes. ये ऐसी जबरदस्त चीज है, और इन्होंने एक प्रोग्राम रन किया था मेरे साथ, पूरा का पूरा 9 बॉक्स ग्रिड में। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त हो गया। You know, this is the linkage. Because softwares भी रुक जाते हैं यहाँ, हाँ, वो लिंक नहीं कर पाते। यस, Because आप अप्रेज हो गए, that's it, अप्रेजल हो गया, फिनिश। बिल्कुल सही। So the good thing is that it is linked. सो मैं समझता हूँ कि जो लिंक इन्होंने क्रिएट किया है, Yeah. दिस इज जो आपने पहले बात की थी टैलेंट मैनेजमेंट की, यहाँ से उस बच्चे का, उस कैंडिडेट का, उस पोटेंशियल कैंडिडेट का जो फ्यूचर करियर पाथ बनता है, मैं समझता हूँ इट हेल्प्स अ लॉट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रेशर टूल, इट्स नॉट अ वेपन जो आपको डराता है, इट्स अकाउंटेबिलिटी टूल जो आपको बताता है कि अभी आप कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, और हम आपको कैसे मदद करेंगे आगे जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो, ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हम खुशामदीद कहते हैं सैयद अकलीम अख्तर साहब को। डीजीएम HR एडमिन है टेक्नो ऑटो ग्लास लिमिटेड एंड टेक्नो एग्री एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड। बड़ी पावरफुल बातें हो रही है हमारा एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ गलती हो रही है, HR का कहाँ मिस अलाइनमेंट है बिजनेस के साथ, क्यों आज HR एक कॉस्ट फंक्शन समझा जा रहा है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे अकलीम साहब के साथ। अकलीम साहब, Thank you. सेल्स जो है रेवेन्यू, प्रोडक्शन रेवेन्यू, IT इनेबलर है, फाइनेंस इनेबलर है, HR भी इनेबलर है, इज्जत कम क्यों है? किसका कसूर है? HR की कॉम्पिटेंस का कसूर है या सेट का कसूर है, इज्जत दे नहीं रहा, और रीजन क्या है इसका सर? Actually देखिए, we need to understand that. एम्प्लॉयर का कसूर भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ तो HR जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका भी कसूर नहीं। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि वो लिंक नहीं कर पाते, ब्रिज नहीं कर पाते। जब तक HR खुद को, HR बिजनेस पार्टनर सिर्फ जस्ट फॉर नॉट फॉर द हैशटैग और इसके लिए नहीं, जब तक वो उसको लिंक नहीं करेगा बिजनेस के साथ, हाँ, जब तक वो ट्रू एनेबलर नहीं बनेगा। लिंक कैसे करें? Obviously to get involved in everything. और वो कहता है मेरा काम थोड़ी है, HR कहता है सेल्स काम मेरा थोड़ी है, जो दवाई बन रही है या माल बन रहा है, प्रोडक्शन मेरा काम थोड़ी है, तो उनका काम है। अगर सेल्स नहीं हो रही है तो HR is responsible. ये अगर प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है then HR is responsible. सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग ठीक नहीं हो रही, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट कमर्शियल डिपार्टमेंट। Yes, it's not like that actually. It's not like that. Absolutely. Because that's why you're a business partner. Yes. And that's your role, from talent acquisition to learning and development, talent management, performance management, and you must be everywhere. Yes. Being HR. हाँ. And if you're not anywhere, means you're not HR at all. You're not HR at all. और वो अच्छा जो बंद कमरों में साइलोज में बैठकर ये जो चंद पॉलिसीज के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, और वो पॉलिसी सिर्फ ईमेल कर देते हैं हमने बना दी, हम जैसे लोग शायद पढ़ते भी नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि जब तक आप अवाम के अंदर, अवाम में बैठ के अवामी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी का क्या? True that. Yes. ठीक है, first of all आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा what are the needs of the organization. बिल्कुल सही। फिर आपको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि because you cannot do everything from the very first day. Right. You need to prioritize. You need to link it, but you need to link it with the business. Yes, absolutely. You don't forget that you are the business owner. बिल्कुल सही। But if you leave this for a second, means you are finished. You're over. सर मिसअलाइनमेंट किया
असल कसूरवार कौन है? सेठ मौका नहीं दे रहा या एचआर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? एचआर मौका ले नहीं रहा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पे, एचआर मौका ले नहीं रहा। मौका प्लेट में पड़ा हुआ है, वो ले नहीं रहा। यस, एम्प्लॉयर इज रेडी टू, एम्प्लॉयर देखें, एम्प्लॉयर ने एचआर रखा क्यों है? फिर अगर उसको कुछ देना ही नहीं था, कोई बेनिफिट्स नहीं देने थे, कोई स्कीम लॉन्च नहीं करनी थी, तो एचआर वो सेठ ने पूरा मौका दिया है प्लेट में सजाकर, अब उसका निवाला तोड़ के तो खुद खाना है। और वो निवाला ये है कि बिजनेस के साथ लिंक करें, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नीड को अंडरस्टैंड करें, प्रायोरिटाइज करें, Prioritize। अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करें, हाँ। ग्रूम्ड करें, उनको बेनिफिट्स दें और एंजॉय करें। और ये मिसकंसेप्शन क्या है? हम हायरिंग कर तो रहे हैं, हम लोगों के टाइम पे एफएनएफ बना तो रहे हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग ठीक तो कर रहे हैं, उनका पेरोल तो चला रहा है। फिर तो ये पर्सनल मैनेजमेंट है। फिर तो ये पर्सनल, मैं कहूंगा कि आप इनको हेट मत कीजिएगा, ये अंदर की बात बता रहे हैं। अगर आप यही कर रहे हैं तो जनाब आप कमाल कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ऐसा ही है सर। दूसरा मैंने देखा है कि ऑपरेशंस, सेल्स एंड पीपल। ऑपरेशन वो तमाम काम जो आपकी सेल्स को सपोर्ट करते हैं, पीपल को मैनेज आप करते हैं। ऑपरेशंस एंड सेल्स आर द रियली पेन पॉइंट फॉर द सेट। तो पीपल किसका पेन पॉइंट हुआ सर? लोग किसका पेन है? HR and ultimately for the employer. फॉर द एम्प्लॉयर, एब्सोल्युटली यस। सेठ की जो फोकस है वो ज्यादातर ऑपरेशन सेल से हटती नहीं है, तो पीपल पे टाइम लगाता नहीं है। पीपल को जो एडवोकेट हैं उनके, जो उनसे नेगोशिएट करना है, डिस्कस करना है, तो सेठ ने इसलिए तो एचआर को हायर किया है। इसीलिए तो रखा है ना। लेकिन जब वो उस देखें अगेन, बट सेट की एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप बिजनेस के साथ लिंक करें वर्कफोर्स को। सही है, जब तक आप नहीं करेंगे, सेट इज नॉट हैप्पी। बिल्कुल सही है। और जो लोग धमकियां देते हैं रॉन्ग वर्ड में भी, लोग कहते हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो कहता है कि सेठ बोलता है इसको रोको, और काउंटर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि आर यू डूइंग अ गुड जॉब? जिसने रिजाइन पुट अप कर लिया, काउंटर दे के आपने उसको रोक दिया, डू यू थिंक आर यू डूइंग अ गुड जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ द सेठ? येस और नो? एंड इफ नो, व्हाई? येस एंड व्हाई? वी नीड टू गो लाइक, हमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। कि दिया क्या? दिया क्यों? The problem is not to address this challenge that has already in front of you. बिल्कुल सही है। It's like कि वो आया क्यों? रिजाइन हुआ क्यों? क्या आपने करियर प्रोग्रेशन पे काम नहीं किया? क्या आपने सही से कॉम्पिटेंट नहीं दिया? मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया आपने? ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप किसी भी चैलेंज का सोल्यूशन तलाश करेंगे, you need to go back to HR. एब्सोल्युटली। So this is not ideal situation, but ये हो जाती है। तो आप इसको अच्छा समझते हैं कि यार काउंटर देके रोक दिया जा, जिससे रिजाइन पुट अप कर दिया है, जाने वाले को जाने देना चाहिए, उसको काउंटर नहीं देना चाहिए। बिकॉज अगर काउंटर दे दिया तो शायद मैं ऑर्गेनाइजेशन में हलचल मचा दूंगा कि फॉर फ्यू बक्स वी हैव स्टॉप इट। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर लेकिन अगर कोई नेगोशिएट करने आए तो उसको मौका देना चाहिए। रिजाइन लिखने वाले को मैं समझता हूँ कि वो उसका राइट है। और दूसरा मैंने देखा है, रिजाइन कर देता है और हम काउंटर देते हैं, फिर भी नहीं रुकता, हम उसको मिसट्रीट करते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं, बहुत हकारत की निगाह से देखते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वी आर लाइक, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इट्स अ फैमिली। वंस वी आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फैमिली, सो वी नीड टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, regardless of anything. Respect is foremost important for us. If we do care, if we give them care, respect, and love. Employee, to be very honest, if I tell you, Technauto Glass, why I am the part of this team, the motive, like, ये तो joining के बाद पता चलता है ना. The turnover, employee turnover, attrition rate is not more than 1.5% per annum. And जब मैं ये 1.5% बोल रहा हूँ, मैं बहुत carefully, if you go in and like, आप जब उसको analyze करेंगे, it will be lesser than that. Absolutely. This is how, because we respect, we care, and we believe in togetherness actually. Right. Absolutely. As a family. अच्छा, दूसरा हमने देखा है कि स्ट्रैटेजी बनती है, बोर्डरूम में बैठ के बनती है, सारे सी लेवल के लोग बैठते हैं, सेल्स को टॉप पे लिया जाता है, सप्लाई चेन की बारी दूसरी है, वेयर हाउसिंग प्रोडक्शन है तो उसकी भी HR, you must be saying HR at the last. Why HR comes at last?
Why HR comes at last? The reason behind it, because being business partner, we need to understand that we are business partner. Just not by like articulating it. Yes, yes. We need to do something practical, बिल्कुल सही है। and that is missing. That's why we are not there. आपका क्या कहना है कि HR को पहले बॉक्स में होना चाहिए, HR को हर बॉक्स First box and every box. Every box. As a business partner. शुरू HR से होना चाहिए और हर बॉक्स के अंदर सेल्स हो, सप्लाई चेन हो, IT हो, फाइनेंस हो, ऑडिट हो, एवरी डिपार्टमेंट के अंदर HR का छोटा छोटा रोल रखा दिया जाए, ताकि मैं समझता हूं कि HR होल ऑर्गेनाइजेशन का तो कस्टोडियन है, हर डिपार्टमेंट का कस्टोडियन बने, अ ट्रू बिजनेस पार्टनर बने। ऐसे ही। मेरा सर एक और सवाल है, एक स्ट्रेटेजी बनाता कोई और है, एग्जीक्यूट कोई और करता है, ईमेल्स तो HR निकालता है। इस पूरी कहानी में HR को कहाँ होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में या कैस्केड करने में, या आपको कैसे नीचे सब लोगों तक पहुंच? लेकिन देखें, जब तक HR बिजनेस पार्टनर है तो फिर उसको एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए, और अगर वो पर्सनल मैनेजमेंट स्टिल फॉलो कर रहा है और वो तो उसका एडवोकेट है तो उसको सबसे लास्ट पे होना चाहिए। That's it. एब्सोल्युटली यस। और अगर मैं कहूँ कि आप जो न्यू प्रोफेशनल्स HR की फील्ड में आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग HR प्रोफेशनल हैं, वो सैयद अकलीम अख्तर जैसा HR प्रोफेशनल बने तो कैसे बने? कोई भी 3 आपकी तरफ से नसीहतें हों, कोई शेर व शायरी का शौक़ भी रखते हैं तो वो भी हो जाए, उस हिसाब से भी समझाना चाहे, ताकि पूरी कौम को मैसेज चला जाए कि हमने जो गलतियाँ की हैं वो रिपीट मत करें। थोड़ा सा वक्त आप उसको कम करके, गलतियाँ करें अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा वक्त बचा के आप कैसे HR के बेटर प्रोफेशनल बन सकते हैं? मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हाँ, ये रिपीट हो जाए, ये रिपीट ये लाइन दोबारा रिपीट करो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, जी सर, तू शाही है हाँ, बसीरा कर हाँ, पहाड़ों की हाँ, चट्टानों। ओ जबरदस्त। With this is my message. Right. And trust in Allah, believe in, हाँ, be a believer. The word is yours. जबरदस्त। तो जॉन एलियस साहब कहते हैं, बड़ी मुद्दतों से नौकरी कर रहे हो, बड़ी मुद्दतों से नौकरी कर रहे हो, अब वक्त है थोड़ा सा काम कर लो। बड़ी मुद्दतों से HR आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अभी वक्त है। अकलीम साहब का जो एजेंडा है, HR बिजनेस पार्टनर बन के देखो, टाइटल वाला नहीं, रियल मायनों में बन के देखो। ट्रस्ट मी, आप और मैं मिलके HR के ब्रांड नेम को अपलिफ्ट करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि वाकई हम कुछ नहीं बल्कि बहुत आप कुछ करते हैं, बस वो मंजर आम पे इसलिए नहीं आता, बिकॉज वी हैव प्रोग्राम्ड अ वेरी नेगेटिव पिक्चर in the minds of different people. Now it's our responsibility, the Ranjit Kumar show's responsibility, Time Trek's responsibility, and Aqleem Saab's responsibility to shine up HR's branding in the minds of different people. Thank you very much. God bless you. Tune in Tech, powered by Time Treks में बहुत शुक्रिया। आपको अगर कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सवालात अकलीम साहब तक पहुंचाएंगे। Thank you very much. God bless you, sir. Thank you very much for this invitation. Excellent. Really enjoyed this conversation with you. Sir. Thank you very much. Thank you. God bless.